Hi students. So today we'll start local self-government, urban bodies and the local governments. So let us start with what are local self-governments. So local self-government can simply be understood as a local management of local affairs with a local representative. So just give me a moment. Okay. So the it's a basically a local management लोकल फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर का रेडियस है 10 किलोमीटर का रेडियस है इस रेडियस में खुद की एक छोटी सी मैनेजमेंट होना किसके लिए खुद के कामों के लिए इस एरिया के कामों के लिए और जो मैनेजमेंट करेंगे वो पर्सन्स कहाँ से आएंगे वो यहीं से होंगे इसी एरिया से यहीं से इलेक्ट होके आएंगे ठीक है और वोट से इलेक्ट होंगे ठीक है तो इसी एरिया के अफेयर्स के लिए मैनेजमेंट टीम यहीं से इलेक्ट होके निकलेगी ठीक है वो लोकली काम करेगी सिर्फ किसी 2 किलोमीटर से लेके जो भी डिफाइंड एरिया होगा ठीक है So local self-government constitutes the third tier of the government. The local self-government were inducted in both rural and urban areas. The rural component of local self-government is known as Panchayati Raj Institutions (PRI). और अगर आप उससे ऊपर जाओगे in the cities or tri-cities you have the urban governments which are municipalities. Municipal corporations, the local self-government got a constitutional status in the Indian Constitution. So it is not in the original Constitution, but after the 73rd and 74th Constitutional Amendment, 1992, it gets added. Okay, so the constitutional amendment आपको याद रखने की ज़रूरत है थर्ड एंड फोर्थ 73rd एंड फोर्थ. What is the relevance of local self government? तो क्या रेलिवेंस है इसका है ना तो अगर आप देखें ग्रास रूट डेमोक्रेसी सो सबसे ज़्यादा अगर आप नीचे जाएंगे डेमोक्रेसी के में तो आपके पास आएंगे ग्रास रूट पे पंचायत है ना जो एक बहुत ही स्मॉल एरिया मतलब अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिज़ाइन ये बहुत ही स्मॉल एरिया को वो डेमोक्रेसी से चलाती है ठीक है जो भी लोकल प्रधान पंचेस जो भी होता है ठीक है एट द वेरी लोअर लेवल ठीक है एंड अर्बन के केस में इट शुड बी लाइक कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस एरिया को चलाती है सो grassroots level at the local level very much grassroots democratic platform transform citizen from passive recipient to active collaborator ठीक है ना it is visualized as a key vehicle for economic देखो अगर हम सभी अपना अपना काम ढंग से करेंगे तो कलेक्टिवली क्या होगा कि will grow all grow ठीक है so that is grassroots democracy participative government making the local self-government inverts the power pyramid from a representative democracy to the participative आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करना बेसिकली आपको डेमोक्रेटिकली पार्टिसिपेट करना है उस चीज़ में यू आर वोटिंग फॉर अ पंच प्रधान यू आर वोटिंग फॉर द अर्बन म्युनिसिपल वोटिंग as well as you're voting for the MP है ना that is a kind of participative government. The participative democracy enhances democratic decision making. अगर चुनाव हुआ होगा तो फिर अगर आप पार्टिसिपेट करके उस चीज़ को बना रहे हो फॉर एग्जांपल आप मेयर को सिलेक्ट कर रहे हो पार्टिसिपेटेडली वो एक मेजोरिटी से एक पर्सन जीत रहा है देन उससे क्या होगा कि ही और शी शुड बी अकाउंटेबल accountability increases transparency increases and the local resources are used to satisfy the local needs because वो उसी एरिया के लिए काम करेगा and he knows ना he knows very well that area so that's why he used to work for that area only there should be transparency और local जो भी resources होगा उसका better use होगा collectively this lead to a realization of free and fair democracy of course collective decision making
The local self-government provides a platform for collective decision-making and talking pluralistic problem-solving, and it helps to in making direct responsibility for the transformation of rural societies. So वही ना पर आप collectively डिसीजन ले रहे हो, देखो आपको इनेबल कर दिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, आप collectively डिसीजन लो, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को भी इनहेंस कर रहे हो। डायलॉग डिस्कशन एंड डिबेट, आप डायरेक्टली एमपी से जाके नहीं बात कर सकती, यू बी एट ग्रास रूट लेवल, यू आर टॉकिंग विद डायलॉग विद पंच, प्रधान, जिला परिषद जो भी है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड्स, you will dialogue with them, you will discuss with them, you have a debate with them, है ना? So you will get access of these things. Beneficiary identification. Local self-government provides a transparent, accountable and participatory government. We are accountable to have she or he or she जो भी government है locally we are doing that, so that is accountable. Everything is accountable if you see in democracy, so there is an accountability. And participatory government, of course, at the grassroots level is the form of Gram Sabha. The local self-government adheres to the theory of justice, which popularizes the principle of bringing the last first. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को फॉलो करती है, विच मीन्स कि जो भी लास्ट में है उसको फर्स्ट में लाया है। मीन्स कि देखो लास्ट कौन होगा जिसके पास मनी वाइज ही इज नॉट गुड फाइनेंशियली, अनदर वेज में भी ही इज नॉट गुड, शी इज नॉट गुड, तो उसको आप उठाना। अगर आप लास्ट को बस को उठा देते हो, ऐसा तो नहीं है उसको 5 करोड़ रुपए दे के आप टॉप पे खड़ा कर दो, नहीं, आप उसको सुधारोगे, उसकी कंडीशंस को, जब आप उसकी कंडीशन सुधारोगे स्टेप बाय स्टेप वो सुधरेगी, ठीक है, तो उससे ऊपर वाले पर्सन को भी इफेक्ट होगा, ठीक। और जैसे कि फॉर एग्जांपल एक विडो है आपके एरिया में रहती है, ठीक है, ही नीड्स अ जॉब ना, ही नीड्स अ जॉब फॉर सर्वाइवल बिकॉज उसका हस्बैंड नहीं है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विल डायरेक्टली गोइंग टू आइडेंटिफाई कि ठीक है जी ये पर्सन है, इसको 2 पर्सन है, एक है जिसके पास पूरी फैमिली है और एक एक लेडी है जिसके पास जिसके 2 बेटे हैं, एक बेटी है और हस्बैंड नहीं है उसका। सो अब अगर आपको 2 में चूज करना हो तो यहाँ पे प्रेफरेंस विद द विडो है ना, तो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी हो जाता है इस केस में। So bringing the last first and the choosing of the beneficiary. Sustainable growth. Local self-government ensures sustainable growth in the rural areas as the decisions are collectively taken. देखो सस्टेन ग्रोथ क्या होती है? सस्टेन ग्रोथ इज दैट अगर कोई पर्सन को आप इस पर्सन को आप जॉब दे रहे हो, ठीक है, उसके कारण द इकोनॉमी ऑफ द विलेज इज गोइंग टू अभी बेटर, अ बिट बेटर, ठीक है, आपके लेस इलिटरेट, सॉरी मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर गोइंग टू जॉब, ठीक है। तो मतलब प्रीवियस से आप देखो ढंग से, तो अगर प्रीवियस की बात करें तो अगर आज आज 5 लोग थे, कल 6 लोग हैं, इकोनॉमी वाइज बोलो आप जैसे मर्जी बोलो, इट इज 6 इज बेटर है, 6 लोग जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये डिसीजन कलेक्टिवली लिया गया होगा तो इट विल गोइंग टू बी अ सस्टेन्ड ग्रोथ, not a good example but again ऐसी देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द रूरल एरिया एज अ डिसीजन कलेक्टिवली, ठीक है। सस्टेन ग्रोथ सिंपली कि वो ग्रोथ मेंटेन रहे या फिर इंक्रीज हो, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए विद द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। द पॉलिसीज फॉर्म्ड हैव द कंसेंट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। देखो अगर पॉलिसी को रूल ग्राउंड सॉरी फॉर एक विलेज को लेके बनना है रूल, तो उस विलेज के हिसाब से वो रूल बन जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट किसका, अगर आप एक-एक से जाके पूछोगे ना तो पूछा जा सकता है, ऐसे नहीं है कि एक एमपी को पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछना है, एक पंचायत को, एक पंच को अपने 200-300 लोगों को पूछना है सर, दैट कैन बी डन ना। द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम कैटर टू द लोकल इश्यूज, ताकि जो सॉल्यूशंस है वो निकाले जा सके। फॉर एग्जांपल पूरे के पूरे विलेज में एक रास्ता है जो टूटा हुआ है, लेकिन स्कूल जाने के लिए यही रास्ता है, जॉब वाले भी इसी रास्ते से जाते हैं, बट ये थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा है, इसके आगे का भी ठीक है, इसके पीछे का भी ठीक है,
तो गाँव डिसीजन प्रॉब्लम सिर्फ यही 100 मीटर है, ठीक है, तो यही 100 मीटर को लेकर डिसीजन लिया गया और सभी को कॉन्सेंट आ गया, सभी से पूछा गया, ठीक है, तो ये ठीक करवा दिया गया रोड, दैट इज, है ना, तो लोकली वो रिजॉल्व हो गया, ठीक है, और मास नंबर ऑफ पीपल के लिए वो अच्छा रहा। Good governance. Local self-government is a government platform that is responsive, participatory, and bottoms-up approach. So you can see now, it is responsive. Why? Because you are handling only 200 people. You have to be responsible. You are not at MP level कि आप लाखों को हैंडल कर रहे हो, एक बेंच आपका मुश्किल से 200 पर्सन को हैंडल करता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यू विल बी कनेक्ट विद ईच वन ऑफ देम 200 के 200 से, ठीक है, तो आप रिस्पॉन्सिव हो सकते हो उस केस में। सिटीजन सेंट्रिक बिकॉज अगर आप ऊपर से नीचे देखो तो अब एम पी एम के अगर 135 करोड़ लोगों को जवाब देना होता है, लेकिन पंच को सिर्फ 200 को देना था। एक बॉटम जब ऊपर से लेके नीचे तक हायरार्की बन रहा है ना, तो जो भी पीएम कहेंगे वो डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकता है अगर इफ द पंच इज वेरी गुड। बेसिकली सिटीजन के लिए फायदा है, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है, अकाउंटेबल ऑफ कोर्स, ट्रांसपेरेंट ऑफ कोर्स, पार्टिसिपेटरी ऑफ कोर्स, एंड बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि ये हायरार्की बन रहा है, दिस इज बॉटम अप अप्रोच ना। तो गुड अवेयरनेस के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स, जो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स और पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स रूरल की बात कर रहे हैं, तो दीज वर इंडक्टेड इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब जब आप 73rd की बात करेंगे तो हम पंचायत की बात करेंगे, और 74th की बात करेंगे, देन वी आर टॉकिंग अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। They were tasked with the implementation of various development objectives for rural communities। और rural communities के लिए जो various implementation करनी है प्रोजेक्ट्स की, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो थ्री टीयर गवर्नमेंट है ये, ठीक है, तो थ्री टीयर गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड दिस, है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। Okay, so this is the hierarchy totally. Now coming to the three-tier government. Three-tier government includes a Gram Panchayat at the village level. So you are going from a grassroots level to up this side. Gram Panchayat level at the top, sorry bottom. Gram Panchayat Samiti at the block level. You are going to village to block and block to district. District means Zila Parishad के base पे, हाँ? So this is a three-tier government. So this is what I told you, that center state, and this is a total hierarchy from top to bottoms up approach. Okay, urban local bodies or municipalities. So 74th constitutional amendment, of course, they were tasked with various development objectives for the town and the cities as mentioned in the Indian Constitution. The different type of urban local bodies होती हैं, they are municipal corporation बोल लो, municipalities या notified NACs बोल, notified area communities, town area committee, townships, port trusts, cantonments, and special purpose agencies. So let us just go with the views of Mahatma Gandhi on this. Mahatma Gandhi's view on local self-government. Swaraj. It is a philosophy meaning self-rule. So means self and Raj means govern or rule करना. Okay. So this is a form of governance where the common man take decision for him or herself and the overall society benefit. मतलब वो अपने लिए डिसीजन लेता है लेकिन ओवरऑल सोसाइटी बेनिफिट होती है, जो ठीक है। गांधी जी envisaged Ram Rajya where everyone rules him or herself within the framework of nature and society, not for his greed or its own needs. तो राम राज्य को उन्होंने एनविसेज किया कैसे, क्योंकि जो भी अपने लिए आप काम करो, ठीक है, आप अपने तरीके से काम करो, अपने लिए काम करो, बट ऑन द बाउंड्रीज कि आप नेचर एंड सोसाइटी
को मेंटेन रखो, जो भी उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया है उसके अंदर अपने लिए कुछ ना करो, ठीक है। अपने लिए मतलब ग्रीडी होकर काम ना करो, बिकॉज स्वराज का मतलब ही ये काम अपने लिए करो और फायदा 50 का हो, और ग्रीड के लिए नहीं बट नीड के लिए। सो स्वदेशी इज नथिंग दैट एज द नेम आइडेंटिफाइज कि अपने लिए का मतलब बायकॉट करना फॉरेन गुड्स को एंड फोकसेस ऑन द इंडिजिनियस और सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्ट जो भी होंगे सेल्फ बनाओ उनको। Cooperative society is very important act again. Gandhiji advocated that cooperative societies were essential for complete decentralization of power. This is a very nice issue. We'll talk about this later. Trusteeship. Gandhiji's idea of trusteeship refers to the philosophy of non-possession. According to him, the resources of the world were for his people as a whole and not for any individual. तो जो people है जो मतलब basically resources of the world है, resources of India है, resources of each state है, वो सभी के लिए, ठीक है। किसी इंडिविजुअल के नहीं है, these are वो all। जैसे पब्लिक प्लेस किसी इंडिविजुअल का नहीं है, वो सबका है। He got that the world has enough for everyone's needs and not for anyone's greed. Of course सभी के लिए है बट किसी की पर्सनल ग्रीड के लिए नहीं है। Trusteeship also indicates the collective decision-making and citizen-centric philosophy. Of course, citizen-centric philosophy very much important. Nai Talim. Gandhiji introduced the term Nai Talim, comprised of two terms. Nai means new and Talim means education or skill. He suggested for the villages to become self-sufficient and self-reliant. The citizen must adhere to an approach which ensured complete personality of mind, body and spirit. Gandhiji pronounced four principles are जो भी एजुकेशन होनी चाहिए वो मदर टंग में होनी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग्स कम्प्लीमेंट्स द नीड्स ऑफ लोकेलिटी। वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि कुछ लोकेलिटी के कोई नीड्स हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई 50 किलोमीटर का एरिया या 10 किलोमीटर का एरिया है जिसे ये चीज़ बहुत पसंद है, ठीक है। एक फॉर एक्स अमाउंट फॉर एग्जांपल यहाँ मोमबत्ती की नीड बहुत है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए हाउ इट इज़ मेड एंड उसको सेल्फ रिलायंट होना चाहिए उस एरिया को अपने लिए मोमबत्ती बनाने में। लर्निंग शुड बी लिंक्ड विद वोकेशनल वर्क, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स। तो जो भी वोकेशनल जैसे हमने लोकेलिटी की नीड्स के लिए कर दिया ट्रेनिंग, सेम हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के लिए नीड खुद से हो जानी चाहिए यूटेंसिल्स के लिए। ऑक्यूपेशन आपकी जो भी है विच शुड बी कॉम्प्लीमेंट द लाइवलीहुड, प्रोडक्टिव लाइवलीहुड ऑफ कोर्स। कमिंग टू सस्टेनेबिलिटी, the Mahatma Gandhi was one of the first proponents of sustainability who supports the functioning of state along the lines of sustainable development. Okay, his famous quote is the world has enough for everyone's needs but not for everyone's greed. So it was very important. Was starkly against the industrial-led development. Gandhiji believed that India lives in its villages and that India can only develop if the village is developed. Of course, that is very much true. Uh, Hence, he claimed a decentralization of power to the villages, development of cottage industries, self-sufficient villages to establish the ग्राम स्वराज, मतलब एक एरिया के अंदर सब कुछ खुद ही बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल दे नीड फ्यूल, चलो फ्यूल तो अब नहीं बन सकता ना, ऑफ कोर्स वो नहीं बन सकता वो चीज़। तो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। इस एरिया के अंदर फॉर एग्जांपल इस एरिया के अंदर कोई खाने की चीज़ है जो कि एक 50 किलोमीटर दूर से आती है, लेकिन वो यहाँ बन सकती है, उसके लिए कोई मशीनरी की ज़रूरत नहीं है बट बनाता ही नहीं है कोई। तो वो चीज़ यहाँ बहुत लगती है लेकिन यहाँ यूज़ बहुत है उसका, बट यहाँ से आती नहीं है, वो 50 किलोमीटर दूर से आती है। तो सेल्फ रिलायंट बनने के लिए किसी न किसी को वो चीज़ यहाँ बनानी पड़ेगी और कंजम्पशन यही हो जाएगी उसकी 50%, मतलब जो भी बनाएगा वो। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सेल्फ रिलायंट हो। डिसेंट्रलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, हमने पहले भी डिस्कस किया। तो villages are basically units of development, of course. According to him, local problems, after being resolved locally and adhering to the principle of subsidiarity, shall make villages self-sufficient. Principle of subsidiarity aims to guarantee a degree of independence for a lower authority in relation to higher body, or the local authority in relation to the central government. Cause centralization and the detail. So these are the view. Now, relation between local self-government and rural government. So transformational, the local self-government, especially the Panchayati Raj Institute, ensures citizen-centric development of rural masses. Basically, they basically focus on PRIs, focus on the citizens. The citizen transform from passive recipients of government to the active collaborative and pluralistic society. तो पैसिव रेसिप्टेंस की वजह से उनको वहाँ से कन्वर्ट करके एक्टिव कोलैबोरेटर बनाया गया कि वो कुछ कर नहीं रहे थे। अगर आप ना देखो ग्राम पंचायत या पंचायत राज ना हो तो दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके नीचे कोई एक्शन नहीं होगा तो वो कोलैबोरेटर नहीं, वो रिसिप्टेंट रह जाएंगे सिर्फ। कोलैबोरेटिव एक्टिव कोलैबोरेटर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो अगर वो है PRIs, so that's why they are active collaborators. Sustainable डेवलपमेंट हम देख चुके हैं। तो लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करके लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो अनस्किल्ड वर्कर्स जो भी हैं, अनएम्प्लॉयड एडल्ट जो भी हैं, ठीक है, उनको डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के काम करवाना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, माइग्रेशन खत्म हो रही है और मतलब गांव का एडवांसमेंट भी हो रही है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, there has been a constant migration of rural citizens to urban areas in search of employment. That is very much true, ये हो रहा है। एंड किसके लिए हो रहा है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो कहाँ से आएगी, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर मनी। द रूरल अर्बन माइग्रेशन, the rural urban migrations from rural areas to urban areas results in decreased availability of labor in rural areas and unplanned growth in urban areas. तो देखो, तो दिस इज वेरी मच सीरियस इशू एंड प्रॉब्लम अगेन, कि माइग्रेशन से क्या हो रहा है कि गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर कहाँ पे नीड है, द रूरल एरियाज। जो गांव है, विलेज से, वहाँ पे नीड जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि माइग्रेट हो रहे हैं पीपल, यानी कि डिमांड ज़्यादा हो गई और पीपल वहाँ से कम हो गए। जो पर्सन थे वो तो माइग्रेट कर गए, और जब माइग्रेट करके रूरल एरियाज में, तो वहाँ पे प्लानिंग थी 100 लोगों के रहने की, अब वहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इनको मना तो नहीं कर सकते। अनप्लान्ड ग्रोथ हो रही है अर्बन एरियाज में। तो देखो, this problem is resolved by the establishment of empowered local self-government in rural areas. The initiatives like midday meal scheme, the Manarega, under the guidance of Gram Sabha, ensures employment guarantee and better standard of living. So just two things ना कि बच्चों के लिए वो मिड डे मील स्कीम एंड द मनरेगा स्कीम, एंड इट इज़ नॉट इनफ, आई जस्ट इट इज़ नॉट इनफ। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए ये चीज़ आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रिड्यूस करने के लिए रिजॉल्व, आई विल नॉट से कि इट इज रिजॉल्व, बट हाँ कुछ हद तक ये हो फर्क पड़ा है ऑफकोर्स। अकाउंटेबल गवर्नमेंट, an accountable government is one that remains answerable for its commissions and omissions to a citizen while dispensing the responsibility bestowed upon him, ठीक है। सो अकाउंटेबल इज नथिंग, सिंपल लिखा गया है कि देखो गवर्नमेंट जो है वो आप कुछ भी करती है उसके लिए वो अकाउंटेबल है। कोई भी डिसीजन लेना है उनको, अगर उनको कोई ऐसा चीज़ लगती है जो होनी चाहिए तो वो तो फर्स्टली अपने मैनिफेस्टो में मेंशन कर देते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं आंसर कुछ कर दिया उन्होंने, तो उसको आंसर भी देना पड़ता है विद इन द पार्लियामेंट कि भाई ये इसलिए हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ, ठीक है। कि RTI इफेक्ट है। ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, जब पार्टिसिपेट कर रहे हो ना आप किसी चीज़ में,
तो अगर आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर, फॉर एग्जांपल आप चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो यू नो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल 5 लोगों का ग्रुप एक प्रोजेक्ट बना, तो आप कोलैबोरेटर, एक्टिव कोलैबोरेटर हो पाँचों के पाँचों बीच में, आपको पता होगा कि बीच में क्या चल रहा है प्रोजेक्ट के, ठीक है? तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी ना आपके सबके बीच में, तो और अकाउंटेबल भी आप सभी के सभी हो, ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ओके, तो उससे क्या हो रहा है, दोनों चीज़ों से एफिशिएंट और इफेक्टिव सर्विस आप कर रहे हो, एफिशिएंटली प्रोजेक्ट बन रहा है और इफेक्टिव प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है? बिकॉज़ यार यू कैन सी ना 5 लोग काम कर रहे हैं, आप सबको सब कुछ पता है इसके बारे में, लेकिन आप अपने-अपने एक्सपर्टीज़ लेके आ रहे हो बीच में, ठीक है? तो आप एक पूरे के पूरे एज़ अ ग्रुप चल रहे हो, पूरे के पूरे बस को आप साथ से लेके चला रहे हो। गुड गवर्नेंस, the bottoms-up approach in contrast to the top-down approach is policy formulation ensure holistic development of the rural community। तो अगर बॉटम्स अप अप्रोच लगा रहे हो आप, टॉप टू डाउन जा रहे हो, टॉप टू डाउन, ठीक है? वाह! ठीक है, जो बॉटल का थोड़ा सा सिरा होता है, उसमें भी अगर आप काम कर रहे हो तो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकती है रूरल कम्युनिटीज़ की। The Panchayati Raj Institutions with active citizen participation. So it is very much important. Active citizen participation and active collaboration of the Gram Sabha at grassroots level ensures accountable and transparent government. Very much important. Inclusive growth. It is said that India lives in its villages. Of course, the highest number of minorities are STs and STs, and women who are mostly excluded from the mainstream decision-making process stay in the rural areas. The local self-government has paved way to inclusive development of ensuring the participation of women and minorities. Inclusively growth अगर करनी हो किसी की, तो that is schedule SCs and STs with the women that are live in, not live in the mainstream. Reservation to women and SCs and STs. One third of the total number of seats, including the number of seats reserved for women belonging to SCs and STs, in every panchayat is to be filled. Direct election shall be reserved for women. तो डायरेक्टली मतलब बेसिकली आप देखो ना, वन थर्ड ऑफ द सीट, टोटल सीट जो भी होंगे, इसमें वो भी आ जाएंगी जो वुमेन्स होंगी एस सी एस टी की, इसी वन थर्ड में वुमेन्स भी आ जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं कि वुमेन्स के अलग वन थर्ड, तो फिर आप 66% सारी की सारी सीट्स वुमेन को चली गई। 4 सीट है, 4 में से 3 तो गई फिर वो राउंड अराउंड। 4 तो बड़ी मुश्किल से होती हैं वैसे सीट्स। ओके, so in the next lecture we are going to dig deep in the Panchayati Raj Institutes